Okay, dear students, welcome to another session for class ninth. So, in today's session, we are going to talk about how to plot square root of 2, square root of 3, square root of 5, square root of 10, square root of 17. All these numbers we are going to plot today. Okay, so let's come over the register and let's see how we can plot them over here. I hope you can see the register on your screen. So, we are going to plot all the numbers that we are talking about. Which numbers we are going to plot about? We are going to plot root 2, then root 3, then root 5, then root 10, then root 17. These are the most important plotting that are required for the exam. If you can do these 5 plottings, you will fetch full marks if such a question comes. Okay, so let's start with the plotting of root 2. So now, if you have to plot root 2 for any number, if you have studied before, you know that अगर आपको if you have to plot, let's say we have to plot root n. If you have to plot root n, let me change the direction of the video so that it's pretty visible to you. If you have to plot root n, you have to first plot what? Root n minus 1. You have to remember this trick because this will help you out a lot. अगर आपको रूट n प्लॉट करना है तो आपको रूट n minus 1 पहले प्लॉट करना पड़ेगा प्यारे बच्चों. If I say you have to plot root 2, you have to plot root 2 minus 1, that is root 1, which is equal to 1. ये जो प्लॉट करते हैं ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्लॉट करते हैं. मतलब अगर आपको रूट 2 प्लॉट करना है तो यू हैव टू प्लॉट 1 ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन. इफ यू हैव टू प्लॉट रूट 3, you have to plot root 3 minus 1, that is root 2 on the horizontal line. मतलब आप horizontal line पे आप root 2 प्लॉट करेंगे. If you have to plot, let's say root 5, you have to plot root 5 minus 1, that is root 4, which is 2 on the horizontal line. आप नीचे straight line पे 2 प्लॉट करेंगे. अगर आपको रूट 10 प्लॉट करना है तो आपको रूट 10 माइनस 1, that is root 9, which is equal to 3, आपको 3 प्लॉट करना पड़ेगा प्यारे बच्चों on the straight line. So these things are pretty important that you should know. Now, one more thing. If you have to plot root 17, you have to plot again root 17 minus 1, that is root 16, which is 4, on the horizontal line. These things needs to be done in order to plot them properly. Okay, just a second, let me pin this. Okay. Okay. Now, let's see what's the process to plot all these. I have already told the trick that आपको horizontal line पे सब plot करना पड़ेगा. Root 2 के लिए 1, root 3 के लिए root 2, root 5 के लिए 2, root 10 के लिए 3 and root 17 के लिए 4. ये तो horizontally बात होगी कि आपको horizontally क्या plot करना है. लेकिन vertically what we have to plot, that also we need to know. कि आप horizontally तो आप ऐसे ये सारे numbers plot करेंगे जैसे जैसे need होगी. लेकिन vertically क्या plot करेंगे. Interestingly, इन सारे केसेस में आपको वर्टिकली हमेशा 1 यूनिट ही प्लॉट करना है. अब वो आपके ऊपर है आप 1 यूनिट क्या लेते हैं. इट कैन बी लेट्स से 2 सेंटीमीटर आपके लिए 1 यूनिट हो सकता है. आपके लिए 3 सेंटीमीटर भी 1 यूनिट हो सकता है. वट एवर यू प्रेफर एज 1 यूनिट. ओके, सो आफ्टर नाउ वी नो दिस, लेट्स स्टार्ट प्लॉटिंग. We will first plot root 2. So let's see how to plot root 2. So question will come like this. Plot root 2 on number line. So let's see what's the process now to plot this. So in order to plot this, first of all, what we need, आपको root 2 प्लॉट करने के लिए आपको अभी अभी मैंने बताया प्यारे बच्चे कि अगर आपको root 2 प्लॉट करना है तो आपको पहले क्या प्लॉट करना पड़ेगा. आपको root 2 minus 1, that is root 1 प्लॉट करना पड़ेगा. आपको 1 हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्लॉट करना पड़ेगा. आप ये 1 जो प्लॉट कर रहे हैं आप अपने हिसाब से कितना भी 1 यूनिट ले सकते हैं. क्योंकि 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा है तो मैं इसलिए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मैं 4 सेंटीमीटर को मैं 1 यूनिट मान के चल रहा हूँ. क्योंकि जैसे ग्राफ में होता था, अगर आपको याद हो, जब हम ग्राफ प्लॉट करते थे तो आप बताते थे कि भाई मैंने 2 बॉक्सेस को 1 यूनिट लिया है. तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक OA लाइन बनाई है
जहां पे मैंने कितना यूनिट बनाया है, 1 यूनिट। और ध्यान रहे प्यारे बच्चों, व्हाट वी हैव डन, 4 सेंटीमीटर को आई हैव टेकन एज 1 यूनिट। दिस इज व्हाट इज डन। ऐसा क्यों करा गया है? सो दैट द प्लॉटिंग लुक्स गुड। एंड क्योंकि अगर आप 1 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा छोटा बनता है, एंड दैट इज क्वाइट मेसी, इजंट इट? सो नाउ आपको बताया था हॉरिजॉन्टल में 1 सेंटीमीटर, एंड यू हैव ड्रॉन 1 सेंटीमीटर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द परपेंडिकुलर, जो आपको परपेंडिकुलर यहाँ पे बनाना है, नाउ देयर आर टू वेज टू डू इट। आइदर you do it with a compass. You may have done this in class 6th or 7th, कि आप परपेंडिकुलर कैसे बनाते थे। आप यहाँ से सेमी सर्कल बनाते थे, फिर यहाँ से एक आर्क बनाते थे, यहाँ से एक और आर्क यूज टू ड्रॉ, इजंट इट? यहाँ से एक और आर्क यूज टू ड्रॉ, फिर यहाँ पे आप रखते थे एक ये आर्क, फिर इधर से आप रखते थे ये एक और आर्क, फिर आप क्या करते थे प्यारे बच्चे, आप इसको ज्वाइन कर देते। तो यही जो आपकी लाइन होती थी, ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन होती थी। अब आप ये सोच सकते हैं कि सर, इज इट इंपॉर्टेंट कि हम कंपास से बनाएं? नॉट एट ऑल। If you change the angle so that it's pretty visible to you again. So I hope this is fine, right? Yes, this is perfect. So now it's not mandatory कि आप कंपास से ही बनाएं। अगर आप स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट बना सकते हैं, then go ahead with it. We have no problem with it. So now आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन पे इन सब केसेस के लिए 1 सेंटीमीटर बनाना है। ये मैं बताऊंगा ऐसा केस क्यों हो रहा है। तो 1 सेंटीमीटर आपको बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आप आप ध्यान रहे, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, आपको हमेशा ऊपर 1 यूनिट बनाना है। आपने 1 यूनिट लिया है 4 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर ही लेंगे कंपस पे। तो कंपस पे 4 सेंटीमीटर लिया आपने, और ये आपने आर्क लगाया। देन यू जॉइन दीज टू प्यारे बच्चे, लाइक दिस, एंड वी जॉइंड। देन एक्चुअली यू गॉट इट, दिस वाज आल्सो 1 यूनिट। Let's say I have named this B. So this OB is nothing but √2। सर ये √2 कैसे हुआ? आप देखें, ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस व्हाट, प्लस बेस स्क्वायर। So this will be 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, and this will become 1 plus 1, which is 2. So OB is nothing but √2. But this is not on the number line. This is right now, this is like literally flying, right? We need a projection of it on the number line. It shouldn't fly like this. तो हम इसका प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं? आप O से कंपास को ओपन करें, इसका रेडियस अप टिल B। जब आप ओपन कर लेंगे, ऐसे आप B तक ओपन करें इसको, लाइक दिस। एंड जब आप इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस, सो दिस राइट ओवर हियर, दिस पॉइंट राइट ओवर हियर इज नथिंग बट, यहाँ पे जो आपको पॉइंट मिला है प्यारे बच्चे, लेट्स से दिस इज सी। ओ से लेके सी तक जो आपको बनाया है, ये आपका √2 है। okay? This what you have drawn right over here is nothing but √2, which is actually 1.414 units. If you'll check, the answer will come out to be the same. I hope this is clear. This is how we have plotted √2. फर्स्ट हमने ये ट्रिक लगाई जिससे हमें हॉरिजॉन्टल पे कितनी लेंथ बनानी है वो पता चला, और ये हमने जस्टिफाई करा कि 1 यूनिट यहाँ पे हमेशा क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। In this way, we are going to draw everything: √3, √5, √7, and then √7 we are not going to do, √10 and √17. Okay, these ones we are going to do. सबसे पहले हम √5, √10 एंड √17 करेंगे। √3 पे हम बाद में आएंगे, आई विल टेल यू व्हाई। So let's draw √5. Over here. Okay. So √5 draw करते हैं क्या? Now for √5 again, what needs to be done? For √5 आपको पहले हॉरिजॉन्टल लाइन निकालनी पड़ेगी कि what will be my horizontal length. I have told you कि दो ही लेंथ होती है कंस्ट्रक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लेंथ होती है। तो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेंथ पता है आपको, वर्टिकल तो 1 यूनिट होती है हमेशा, तो √5 की क्या होगी? तो अगर आपको √5 की लेंथ निकालनी है, आपको √5 पता करना है, तो √5 की हॉरिजॉन्टल लेंथ आप रफ में चेक कर सकते हैं। √5 - 1 करेंगे, और √5 - 1 कितना होता है प्यारे बच्चे? √4, विच इज नथिंग बट 2। मतलब कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे 2 यूनिट्स बनाएंगे बच्चे, 2 यूनिट्स। तो लेट्स डू दैट नाउ ओवर हियर। अब 2 यूनिट्स बनाना है, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं और 2 यूनिट अपने हिसाब से। मैं अपने हिसाब से 4 सेंटीमीटर को 2 यूनिट मान के चल रहा हूँ, ठीक है?
So this is my OA. This is 2 units, जो इनफैक्ट मैंने कितना लिया है 4 सेंटीमीटर के बराबर, मतलब मेरा 1 यूनिट जो है 2 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा डायग्राम बहुत सुंदर लगे। राइट नाउ, अगर आपने 4 सेंटीमीटर 2 यूनिट लिया और आपको पता है परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट होता है, तो आपने यहाँ पे 1 यूनिट बना लिया हमेशा की तरह। आप स्ट्रेट देखिए, इस बार मैंने कंपास से नहीं किया, बिल्कुल स्ट्रेट लिया तो करेक्ट है ये भी। ठीक है, नाउ दिस इज माई बी। नाउ यू जॉइन दिस अप, व्हेन यू जॉइन दिस अप like this will be my root 5, and to justify I may use Pythagoras theorem over here, show you that OB square is equal to OA square plus AB square. OA square is 2 ka square plus 1 ka square, that is 4 plus 1, which is in fact 5. Agar OB ka square 5 hai pyare bachche, so what will be O? O will be root 5. And you can see, but again, this is in the air. I'm not accepting this thing. I need it on the projection, on the number line. So आप O पे रखेंगे कंपास की नीडल को, and you will open up till B, and आप क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे, राइट, ऐसे घुमाएंगे। So ये जो आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, आप इसको C नाम दे सकते हैं। Let's name it over here, C। और यहाँ पे आप इसको स्केल से आप एक्सटेंड कर दें, ये जो OC लाइन होगी ये आपका रूट 5। This is pretty easy actually. So root 5 is also done. Remember, I'm doing with a pen so that it's visible to you. You can do it with the, you have to do it with the pencil. Okay. So हमको एक ट्रिक पता चल गई है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हमें ऐसे निकालना होता है, हॉरिजॉन्टल लेंथ के लिए रूट n minus 1 और वर्टिकल हमेशा 1 in such cases. Let's move on to the next one, which is my root 10. रूट 3 हम बाद में करेंगे। Let's move on to root 10. अब रूट 10 कैसे प्लॉट होगा प्यारे बच्चे, लेट्स सी। सो रूट 10 के लिए अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन रूट 10 minus 1, दैट इज रूट 9। और रूट 9 लेंथ कितनी होती है, रूट 9 लेंथ होती है बच्चे 3। मतलब आप 3 यूनिट्स जो हैं, मतलब आप 3 यूनिट्स जो हैं, अगर आप देखें यहाँ पे, मतलब आप 3 यूनिट्स जो हैं आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। तो लेट्स सी, अगर आपको 3 यूनिट्स बनाना है, लेट मी एडजस्ट द कैमरा थोड़ा बहुत, ओके। सो 3 यूनिट्स कैसे बनाएंगे देखते हैं, 3 यूनिट्स हॉरिजॉन्टल लाइन पे। देखो भाई, इस बार आपकी जो मर्जी है, आप बोलें 3 यूनिट्स को। अगर आप नॉर्मली 3 सेंटीमीटर को ही 3 यूनिट्स मानना चाहते हैं वो भी ठीक है, इस बार नॉर्मली ले लेते हैं। ठीक है, रटना नहीं है बच्चे, अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल रहना है। तो ये ओ ए, इस बार मैंने 3 सेंटीमीटर को ही क्या लिया है, 3 यूनिट्स लिया है, ये 3 यूनिट्स है। तो मेरा ऊपर परपेंडिकुलर पे हमेशा कितना होता है, 1 यूनिट, तो आपने 1 यूनिट बनाया इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओ बी 1 यूनिट। नाउ यू जॉइन इट अप, if you join it up, what happens, the thing over here is nothing but root 10। How come, again justify, ob का स्क्वायर oa का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर, t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 plus 1 that is 10, so ob will be root 10। देखो रूट 10 आ गया, लेकिन again it is in the air, so you will draw a projection। देखा कितना छोटा सा बन रहा है। तो यही प्रॉब्लम होती है जब आप नॉर्मल सेंटीमीटर्स लेते हैं। तो आपने ऐसे प्रोजेक्शन लिया था, you have taken a projection। Now when you took a projection, you got a point, let's say this is C। so O से लेके C तक, O से लेके C तक will be my root 10। I hope that is clear। This is my root 10 that we have drawn। One more and then we'll come to root 3। एक इंटरेस्टिंग है, उसके बाद हम एक स्क्वायर रूट स्पाइरल भी समझेंगे वो क्या होता है प्यारे। Let's come to another diagram named as what? Named as square root of 17। चलो 17 करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7। अगेन द सेम ट्रिक, अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 17 निकालना है तो आपको 17 minus 1 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16 निकालना होगा हॉरिजॉन्टल पे। मतलब आपको पहले 4 बनाना होगा। याद रहे, ये आपको सॉल्यूशन में नहीं दिखाना है, रफ वर्क है। ओके, सो आपको 4 यूनिट्स पहले हॉरिजॉन्टली बनाना है। तो अगेन मैं इस बार नॉर्मल ले रहा हूँ क्योंकि 4 यूनिट्स इनफ है। तो 4 यूनिट्स 4 सेंटीमीटर के बराबर ही ले लिया मैंने। दिस इज माई 4 यूनिट्स। Now, 1 unit as always on the perpendicular. This is so easy. So this is my OB, which is 1 unit. Now let's join it up। OB को join कर लो, अरे join कर लो उसको, मिला दो इनको। So root 17 होगा,
चेक करना है, चेक कर लो, चेक करते हैं, चेक करते हैं इसको। यहाँ पे चेक करें, चलो चेक करते हैं। सो ओबी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। So this will be what? This will be 1 का square plus 4 का square. So 1 plus 16 that is 17. तो OB कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, √17। तो OB मेरे पास कितना हो गया, √17 हो गया, यही तो बनाना था। तो हमने √5, √2, √10 एंड √17 कर लिया है। अब हम √3 की तरफ चल रहे हैं, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। √3 को मैंने देखा है बच्चे दो तरीके से बनाते हैं, कई जगह पे किसी और तरीके, कहीं पे किसी और तरीके से। मैं आपको दोनों तरीके बता, फर्स्ट वे ओवर हियर, सेकंड वे ओवर हियर। तो देखो, अगर आपको पता है, ट्रिक जो थी वो ये थी कि अगर आपको √3 बनाना है तो आपको हॉरिजॉन्टल पे √2 पहले बनाना पड़ेगा। तो मतलब आपको √2 बनाना ही पड़ेगा। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन, आप √2 कैसे बनाते थे, अगर याद हो तो पहले यहाँ पे 1 यूनिट लेते थे। 4 सेंटीमीटर को मैंने 1 यूनिट लिया है, तो इधर भी मेरा 4 सेंटीमीटर 1 यूनिट होगा, ताकि आपको कंस्ट्रक्शन बड़ी सी दिखे, इसलिए मैंने ऐसा लिया। ये भी 1 यूनिट ले लिया मैंने। उसके बाद इसको ज्वाइन किया, इसको इसलिए पेन से नहीं बनाना है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, मैं तो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको दिखे स्ट्रेट। ओके, so now this is my √2. Now what I will do, I will take the projection like this. Okay, ए, 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 ए. So ये जो आपका यहाँ पे पॉइंट है, प्यारा सा पॉइंट है, स्केल से करना इसको। तो ये हो जाएगा √2। तो आप देख रहे हो आपने हॉरिजॉन्टल पे √2 बना दिया है, तो इधर इतना मेसी हो जाएगा, तो इसलिए एक और लाइन बना लेते हैं। और आपको पता है √3 के लिए हॉरिजॉन्टल पे क्या चाहिए था, √2। तो भाई इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। सर ये कॉपी कैसे करते हैं, अरे बचपन में सीखे हो तुम। ओ पे रखो कंपास को, इसको सी तक ओपन कर दो, इसको यहाँ पे रखो, ऐसे का आर्क लगा दो। ठीक है, क्या किया, उठाया ऐसे, इसको यहाँ पे रखा ओ पे, और ऐसा आर्क लगा दिया। तो ये जो यहाँ से आपने लिया है, ये यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, ये कुछ नहीं है, ये √2 ही है। और देखो आपने हॉरिजॉन्टल पे √2 ले लिया, जो प्रोसेस था हमारा। और हमेशा की तरह परपेंडिकुलर पे क्या होगा, 1 यूनिट। लेकिन ध्यान रखना प्यारे बच्चे, आपने 1 यूनिट को लिया है 4 सेंटीमीटर अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो यहाँ पे भी इसको 4 सेंटीमीटर, दिस इज 1 यूनिट, देन यू जॉइन इट अप। एंड गेस व्हाट, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये √3 होगा। इसको नाम दे दो भाई, क्या नाम दे दें इसको, दे देते हैं DEF। ये √3 होगा, चेक कर लो, चेक कर लो, DF का स्क्वायर, चेक कर लो, DF का स्क्वायर इक्वल टू EF का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो दिस विल बी 1 + 2 विच इज 3। तो DF विल बी √3, लेकिन ये तो हवा में है, तो इसको हवा में नहीं रहने देते, हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन बना देते हैं। इसको प्रोजेक्शन बनाना कहते हैं। ऐसे ओपन किया F तक, एंड टना 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 टना, एंड दिस पॉइंट राइट ओवर हियर इज G। इसको ओपन किया यहाँ तक, और दिस विल बी माय √3। तो आपने सेम प्रोसेस से, जो अभी तक प्रोसेस कर रहे हैं उसी तरीके से आपने इसको बनाया। कितना क्लीन भी दिख रहा है। लेकिन इसको एक और तरीका है करने का, विच इज स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड। लेट्स सी वो क्या तरीका है। पहले आपको √2 तो बनाना ही पड़ेगा बच्चे इसमें भी, तो आप फिर से √2 बना लें इधर। ठीक है, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ जो कुछ बुक्स में होता है। तो आपने यहाँ पे 1 यूनिट बनाया, 4 सेंटीमीटर के बराबर मैंने लिया है बच्चे। और फिर अगेन ओवर हियर 1 यूनिट बनाया, 4 सेंटीमीटर के बराबर। इसको ज्वाइन किया मैंने, देन यू ज्वाइन इट अप, रिमेंबर डू इट विद अ पेंसिल। दिस विल बी माय √2। अब नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग्स। अब आपको क्या करना है, अब आप यहीं से इसी के ऊपर आप क्या बनाए, √3। अब वो कैसे बनता है देखो, आप क्या करें, इस पे एक परपेंडिकुलर बनाए। अब परपेंडिकुलर आप कंपास से ही बना सकते हैं, स्केल से, बट हियर आई विल सजेस्ट कि आप इस परपेंडिकुलर को कैसे बनाएं। मैं थोड़ा सा आपको इसके क्लोज ले जाता हूं दिखाने के लिए कि व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर। थोड़ा सा क्लोज ले जाते हैं। देखो, क्या करना है आपको, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है प्यारे बच्चे। तो आप क्या करेंगे, कंपास को ऐसे सेमी सर्कुलर वे में करेंगे, और लाइक दिस। आप क्या करेंगे फिर, आप यहां से एक आर्क लगाएंगे, आप यहां से एक आर्क लगाएंगे प्यारे बच्चे, फिर यहां से एक आर्क,
फिर यहाँ से एक आर्क, फिर यहाँ से एक आर्क। तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे, इनको जब आप ज्वाइन करेंगे, ये ये करके, ये ये, तो ये जो आपको मिला है, ये मिला है आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर। और अब नीचे वाला पार्ट भूल जाओ, क्या ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं हो गया? √2 आपको बेस पे मिल गया, मतलब यहाँ पे कितना लेना है? यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 यूनिट। और 1 यूनिट तो प्यारे बच्चे आपने 4 के बराबर रखा है, 4 सेंटीमीटर। तो भाई या फिर तो यहीं से कॉपी कर लो, कंपास पे नहीं, उस पे नहीं जाना स्केल पे। तो यहाँ से ये लगाया और इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया। अरे 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 अरे, अरे। ठीक है, तो ये जो आपको मिलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट बनाना पेंसिल, ये जो आपको मिलेगा ये √3 मिलेगा। आप यहाँ से प्रोजेक्शन बना सकते हैं चाहे तो। अगर आप इसको इतना भी छोड़ेंगे ये भी करेक्ट है, क्योंकि स्क्वायर रूट स्पाइरल में ऐसे छोड़ सकते हैं। स्क्वायर रूट स्पाइरल की अभी हम बात करेंगे कि है क्या चीज, लेकिन दिस इज अनदर वे टू ड्रॉ इट। ओके, यू कैन डू यूजिंग दिस मेथड ऑल्सो। नाउ लास्ट टॉपिक, स्क्वायर रूट स्पाइरल हम बात करेंगे अब। ये स्क्वायर रूट स्पाइरल क्या होता है? कुछ स्कूल्स में दिस इज गिवन एज अ प्रोजेक्ट ऑल्सो, सो समझे स्क्वायर रूट स्पाइरल। इसको मैं प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली बना के दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या करते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल में बच्चे, आप पहले मान लीजिए आपने √2 बनाया है, ठीक है, आपको पता है √2 कैसे बनाते हैं। यहाँ पे 1 होता है, फिर यहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? √2, आपको पता है। फिर क्या होगा, आप यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाते हैं, आपको पता है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट अभी अभी बनाया था। तो ये क्या मिलता है आपको? √3, क्योंकि √n-1 ये बेस पे मिल रहा है। फिर आप क्या करते हैं, एक और 1 परपेंडिकुलर। तो अगर ये √n-1 इसमें एक ऐड करेंगे, क्या आएगा? √4 आएगा। मतलब ये 2 यूनिट्स एक तरीके से, या फिर √4 भी बोल सकते हो। फिर आप क्या करेंगे, फिर से इस पे परपेंडिकुलर बनाएंगे, ये 1 हो जाएगा। अब इस पे एक और ऐड कर दो, मतलब क्या बनेगा? ये √5। ऐसे कर करके एक्चुअली में आप बहुत ही सुंदर से एक पैटर्न मिलेगा आपको, जो आपके एनसीईआरटी के एक एक्सरसाइज में भी है। इसी चीज को हम कहते हैं स्क्वायर रूट। और कैन यू सी द फिगर, दिस काइंड ऑफ स्पाइरल। This is what square root spiral is. And maths in itself is very beautiful. This pattern is observed in a lot of things in the universe. It is observed in your hair also. If you go look at the scalp, you will see this kind of a pattern. If you check the bark of a tree को कट करो, उसके बीच में भी ऐसा पैटर्न मिलता है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये फिबोनाची सीक्वेंस होता है, आप फ्यूचर में पढ़ेंगे इसके बारे में अगर आप मैथ्स लेते हैं। मतलब हर जगह ऑलमोस्ट दिस काइंड ऑफ अ सिनेरियो कैन बी सीन। even the flower petals, if you have seen, they grow like ऐसे, isn't it? Mushrooms, sorry, what is called seashells, जो हमारे शंख होते हैं उसमें भी ऐसा पैटर्न होता है। तो इज इट अ कोइंसिडेंस? नो, दिस इज व्हाई मैथ्स इज ब्यूटीफुल। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। आई होप आपको स्क्वायर रूट कंस्ट्रक्शन अगर आता है तो आप फुल मार्क्स लेके आएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। टाटा, बाय बाय।